Hello everyone, I'm Prerna and this is part 2 of our chapter Crop Production and Management. This is chapter 1 of class 8 science and chapter name is Crop Production and Management and this is part 2. So dear children, before watching part 2, please watch part 1. I have already uploaded. I will give the link of the part 1 in the description box below. Okay, so let's start part 2. सो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था. ठीक है. सो व्हाट वी लर्नड इन पार्ट वन. एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ नीड्स फूड. Regular production, management, and distribution of food is necessary. We cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. This practice is called एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड को कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ओके, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ crops based on the season, and the two type of crops are rabi and kharif. Rabi crops are those which are grown in winter season and kharif crops are those which are grown in rainy season. Okay, cultivation of crops involves several activities. We have discussed in part 1 what are these activities, like preparation of soil, selection of seeds, okay, sowing of seeds, addition of manure and fertilizer, irrigation. All these activities we have discussed in part 1, and we have discussed some activities, some first three activities in part 1 in detail. What were these three activities? These were preparation of soil. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि soil को कैसे prepare करते हैं. ठीक है. Means we plow the soil, we what we do, we use plow and we loosen the soil or turn it upside down. Okay, and then we read about the selection of seeds, how we select good seeds, best quality seeds, or we can say how we have selected the healthy seeds. Okay, so next we read about the sowing of seeds, how we sow seeds. There are two types of methods, means there are traditional methods and there are modern methods. Okay, we have read about the sowing of seeds, and then we have read about the transplantation process. Some plants, some crops are planted by the process of transplantation. Their seeds are not sown directly in the field. So now in this part we'll we'll read about what are the next steps in the agriculture. So we have read about the preparation of soil and sowing of seeds already. Now we will see what is the next step. So the next step is adding manure and fertilizer. Okay, after sowing seeds in a field, what we do, we add manure and fertilizers. So why we add manure and fertilizer, what is manure and what are the fertilizers, we'll see. See, continuous cultivation of crops makes the soil पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. ओके, जैसे हम कंटिन्यूसली खेती करते हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स क्या करती हैं, क्रॉप्स यूज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉयल. इससे क्या होगा, जो सॉयल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. ठीक है, सॉयल विल बी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ वन क्रॉप. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉयल with nutrients. Okay, so to restore all the nutrients in the soil again, because the plants that were grown early have used all the nutrients, okay, that made the soil infertile, or we will say there are lack of nutrients in the soil now. So to restore those nutrients for the next crop, what a farmer do, farmer add manure to the field, okay, to restore the soil with all the nutrients, and this process is called manuring. Adding manure to the soil to restore the nutrients is called manuring. Okay, manuring मतलब manure means खाद जो होती है हमारी, जो ऑर्गेनिक खाद होती है. ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स और जो लिविंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनके मरने से या उनके जब वो डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जब जो मैटर बनता है दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर. ठीक है, तो मैन्योर को वो फार्मर्स क्या करते हैं, सॉयल में ऐड करते हैं, एंड एडिंग मैन्योर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल. सो व्हाट इज़ मैन्योर, विल सी. Manure is an organic substance
obtained from the decomposition of plant or animal waste. Why it is called organic? Because it is made from plant or animal waste. It is made from living things. Okay, when plants and animals decompose, they decay, ठीक है, then it is converted into manure. How? Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. फार्मर्स क्या करते हैं, एक पिट मीन्स होता है एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं वो एक ओपन प्लेस में, और उसमें जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, मीन्स वेजिटेबल पील्स हो सकते हैं, कोई मरा हुआ एनिमल हो सकता है जो, तो वो सब कलेक्ट करके उस पिट में, उस छोटे से गड्ढे में जो प्लांट फार्मर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो क्या है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसको डिकम्पोज करता कौन है, सम बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल। सो द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं, उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जब वो मटेरियल सब डिकम्पोज हो जाता है तो उसको एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ मैन्योर। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। See, both manure and fertilizers have the same work. They increase the fertility of soil, but still there is a difference. So what is the difference? We'll see. We have seen the definition of manure. Now we will see what are fertilizers. So fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. ठीक है, देखो जब मैन्योर बनाई जाती है, मैन्योर के अंदर हम कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अमाउंट को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, डेड प्लांट डेड एनिमल्स, उसको हम डिकम्पोज करेंगे और एक मैन्योर बन जाएगी जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, दीज आर द केमिकल्स। और ये क्या किया जाता है, इसमें पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है जिसकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सपोज़ अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएंगे दैट विल बी रिच इन नाइट्रोजन, ओके, जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र्स को क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है तो उनको पर्सनलाइज हम कर सकते हैं, मीन्स अपने अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट्स हमको कम चाहिए या जो ज़्यादा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बिकॉज दीज आर केमिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर्स देखो क्या है, हर फर्टिलाइज़र के अंदर अलग अलग से न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, मीन्स उसकी जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन होती है वो ह्यूमन मेड होती है, मीन्स ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, ओके। सो दीज आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके फर्टिलाइजर्स बहुत कॉमन है। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। के यहाँ पे इसलिए लिखा गया बिकॉज के इज़ द सिंबल फॉर पोटेशियम, ओके। सो एनपीके फर्टिलाइजर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इसके अंदर तीनों असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। अभी हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों के बारे में पढ़ा, ठीक है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा, दोनों का कॉम्पोजिशन देखा कि मैन्योर कैसे बनते हैं, फर्टिलाइज़र कैसे बनते हैं। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। सो फर्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इट इज़ मैन मेड, ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ मैन मेड। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है, केमिकल्स के इस्तेमाल से इनको बनाया जाता है। सो विल टॉक अबाउट मैन्योर नाउ। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरल, obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues, okay। here decomposition word is very important, ठीक है।
ऑर्गेनिक मैटर जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, उसको डीकम्पोज करके मैन्योर बनाई जाती है. ओके, सो डीकम्पोजिशन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है. एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. ठीक है, फील्ड्स के अंदर मैन्योर खाद बनाई जा सकती है. नेक्स्ट है fertilizers do not provide any humus to the soil. Sorry. So third point is fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizers जो है soil के अंदर कुछ भी कोई humus add नहीं करते हैं. What do you mean by humus here? Humus is the organic substance. As manure is made up of organic substances, so manure add humus to the soil. It actually it provides a lot of humus to the soil. Okay, we'll see the next point now. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. I already told you that fertilizers are prepared in factories. फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स, तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है. जितना न्यूट्रिएंट, जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं. सो फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई अमाउंट में होते हैं. ठीक है, विच प्लांट न्यूट्रिएंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. एंड मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. और मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं, बिकॉज वो क्या है, उस पर हमारा, उसको बनाने में हमारा कंट्रोल नहीं होता. उसमें जो हमको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वो हम डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में उसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट विल सी विच वन इज़ बेटर. ठीक है, नाउ वी हैव रेड अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड वी हैव रेड अबाउट मैन्योर ऑल्सो एंड वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ विच वन इज़ बेटर. दोनों में से बेटर क्या है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र? लेट्स सी. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. ठीक है, I have told you that fertilizers are rich in all the nutrients because these are man-made, these are chemicals, these are made in factories. तो इनके अंदर जो nutrients की amount होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. So fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops. Yield का मतलब क्या होता है, जो क्रॉप्स की क्वालिटी है, क्वालिटी बेटर होती है, जो उसकी उपज है मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और गुड क्वालिटी की क्रॉप प्रोड्यूस होती है व्हेन वी आर यूजिंग फर्टिलाइज़र्स. और फार्मर्स ने फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके बेटर क्वालिटी की क्रॉप्स लगाई हैं. ठीक है, लाइक वीट, पैडी और मेज़. ठीक है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो प्लांट की यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे, हम मैन्योर को साइड कर देंगे और सिर्फ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते रहेंगे. ठीक है, हमने एक क्रॉप लगाई, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने के लिए सॉइल के अंदर हमने सब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया. फिर हम नेक्स्ट क्रॉप लगा रहे हैं, उसमें भी हमने बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स डाल दिए क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट्स देने हैं प्लांट को. ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलाइज़र्स को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल है वो धीरे धीरे लेस फर्टाइल हो जाती है. उसकी जो फर्टिलिटी है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं. तो फर्टिलाइज़र्स वाटर पोल्यूशन कैसे करते हैं? देखो, हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं फील्ड्स में. ठीक है, फील्ड्स में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं फिर हम इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी देते हैं फील्ड्स के अंदर. ठीक है, तो वो पानी क्या होता है, कई बार बह के फ्लो करके वाटर सोर्सेज में मिक्स हो जाता है. वाटर सोर्सेज मतलब कि जैसे कि रिवर्स होती हैं, रिवर्स में अगर फील्ड्स का पानी जाके मिक्स होगा तो उस पानी के अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी मिक्स होते हैं क्योंकि हमने सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र्स ऐड किए थे. ठीक है, तो वो फर्टिलाइज़र्स भी उस पानी के अंदर पहुंच जाते हैं. ठीक है, जो रिवर है, अगर हम रिवर की बात करें तो वो फर्टिलाइज़र्स भी पानी के साथ रिवर में चले जाएंगे. ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं. तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूट होगा.
ठीक है। जब फर्टिलाइज़र्स पानी में मिक्स हो जाएंगे, जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, मेनली विलेजेस में जो सोर्स ऑफ वाटर होता है दैट इज़ अ रिवर। तो रिवर के अंदर या कोई पॉन्ड वगैरह है जहाँ पे पानी स्टेगनेंट है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे जब फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो, क्योंकि वो केमिकल्स हैं तो वो जो पानी है वो पोल्यूट होगा, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पोल्यूशन ऑल्सो, ओके। सो फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। और वाटर पोल्यूशन के अलावा फर्टिलाइज़र्स वाटर बॉडीज़ को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, अगर हम रिवर की बात कर रहे हैं तो रिवर के अंदर जब फर्टिलाइज़र्स चले जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, देखो फर्टिलाइज़र्स का काम होता है प्लांट्स को ग्रो करना, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो कई बार वाटर बॉडीज़ के अंदर भी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज फर्टिलाइज़र्स। जैसे आपने एल्गी के बारे में सुना होगा, एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी आपने, पॉन्ड्स के ऊपर बन जाती है, ठीक है। वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, और जब फर्टिलाइज़र्स पानी में मिक्स हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो पानी में बढ़ जाएगी, तो वो एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब पानी के ऊपर सरफेस पर पूरा एल्गी ग्रोथ हो गई है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो छोटे जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, दे विल यूज़ द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, जिससे पानी के अंदर रहने वाले, रिवर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, फिश वगैरह सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन वो छोटे प्लांट्स जो हैं, एल्गी जो है वो यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर बॉडीज़ के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है दैट विल रिड्यूस इन द वाटर बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी रहते हैं, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि कोई फ़िश हो सकती है या और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, वो हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके हिस्से की जो ऑक्सीजन थी वो तो एल्गी ने ले ली, ठीक है। अभी उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है फिश वगैरह को, तो वो क्या होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इस वजह से फर्टिलाइज़र्स की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और इस तरह से जो पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूट्रोफिकेशन। ये टर्म आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर्स की वजह से जब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द एल्गी, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर फिश वगैरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। आगे देखो, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से, एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो अगर हमें फर्टिलिटी को बनाए रखना है सॉइल की, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें फर्टिलाइज़र की जगह ऐसी चीज़ डालनी पड़ती है जो फर्टिलाइज़र का काम भी करे और सॉइल भी पॉल्यूट ना हो, सॉइल जो है फर्टाइल बनी रहे, ठीक है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम ना हो। तो हम फर्टिलाइज़र्स को सब्सटीट्यूट कर देते हैं मैन्योर के साथ, ठीक है। तो हम कुछ अमाउंट में फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, कुछ अमाउंट में मैन्योर ऐड कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे, जब हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उस क्रॉप को काट लेते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उस फील्ड को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। अगर हम एक के बाद एक क्रॉप लगाते रहेंगे, ठीक है, उसमें गैप नहीं देंगे, तो न्यूट्रिएंट्स
ख़त्म हो जाएंगे सॉइल के अंदर, ठीक है, और जो सॉइल है लेस फर्टाइल हो जाए, मतलब फर्टाइल नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। सो व्हाट वी डू, वी लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, ठीक है, दो क्रॉप्स के बीच में हम गैप दे देते हैं, ओके, टाइम गैप, मतलब एक क्रॉप लगाई फिर कुछ टाइम फील्ड को खाली छोड़ दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे, ओके। तो ये था हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का टॉपिक। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र्स के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। फर्टिलाइज़र्स कोज वाटर पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन और सॉइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र्स। तो अब देखेंगे कि मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं, मैन्योर के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। सो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है उसे फर्टिलाइज़र्स से बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखो क्या होता है, जो भी सॉयल होती है उसकी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मीन्स सॉयल अपने अंदर कितने पानी को रिटेन कर सकती है, रख सकती है, ठीक है। और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। और प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉयल से लेते हैं, ठीक है। अगर सॉयल के अंदर वाटर होगा ही नहीं तो प्लांट्स वाटर कहाँ से लेंगे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो कितने पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकती है, ठीक है, जितना पानी को वो अपने अंदर होल्ड करेगी उतना ही प्लांट्स की रूट्स को वो पानी अवेलेबल होगा और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो मैन्योर यूज़ करने की वजह से जो सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। नेक्स्ट इज इट मेक्स द सॉयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। पोरस का मतलब आप समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोरस। पोरस जो वर्ड है दैट इज मेड फ्रॉम द वर्ड पोर्स। पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैन्योर जो होती हैं वो सॉइल को पोरस बना देती हैं, मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल होल्स हो जाते हैं मैन्योर की वजह से, जिसकी वजह से जो सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस ले सकते हैं, एयर उन तक पहुंच जाती है, ठीक है, उन पोर्स के थ्रू एयर उन तक पहुंचती है। और सॉइल के अंदर भी एरिएशन बना रहता है, मतलब हवा है जो वो बनी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो सांस ले सकते हैं। और वो सॉइल के ऑर्गेनिज्म अगर वो मर जाएंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सॉइल के अंदर रिस्टोर नहीं होंगे, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो घट जाएगी, ठीक है। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल ऑर्गेनिज्म को अगर हम चाहते हैं कि वो सॉइल में ही रहें तो क्या है, उन तक एयर पहुंचाना भी ज़रूरी है। एयर पहुंचाने के लिए सॉइल को कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कुछ पोर्स होने चाहिए जिसके थ्रू एयर उन तक पहुंच सके ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो जो मैन्योर होती है वो सॉइल को पोरस बनाती है, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब हवा जो सॉइल के अंदर इजीली क्रॉस कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। देखो जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप आ जाएंगे। क्या करने आएंगे वो, क्योंकि जो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है वो उनका फूड है, तो उनको वहाँ पे खाना मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम मैन्योर ऐड करते हैं तो मैन्योर उन ऑर्गेनिजम्स का क्या है, खाना है, तो वो उसके लिए वहाँ पे आते हैं। तो उसकी वजह से मैन्योर ऐड करने की वजह से क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ज़्यादा होंगे, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना जल्दी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से और ज़्यादा मैन्योर बनेगी और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिस्टोर होते रहेंगे, मीन्स बने रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, टेक्सचर का मतलब होता है सॉइल की अपीयरेंस जो है, सॉइल की वो स्मूथ है या रफ़ है, कोई भी चीज़ का जो अपीयरेंस होता है उसको जब हम टच करते हैं, नॉट ओनली अपीयरेंस, वो आपको कैसी दिख रही है या फिर आप कैसी फील हो रही है अगर आप टच करोगे, स्मूथ है या रफ़ है, दैट इज़ कॉल्ड द टेक्सचर, ठीक है। तो सॉइल के अगर हम टेक्सचर की बात कर रहे हैं, जो मैन्योर होती हैं वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग ऑफ अ गुड प्लांट, ओके। सो देखो मैंने आपको अभी
एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर बताया, हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की बात की थी, ठीक है। बेसिकली मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का एक ही काम होता है, न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करना सॉइल के अंदर, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। यहाँ पे एक और मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल की अच्छी यील्ड मतलब कि अच्छी फसल लगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हम यहाँ पे बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर मेथड जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड क्रॉप rotation. Okay, so there is another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. इसमें क्या होता है, देखो suppose एक फार्मर है, वो अपने फील्ड में वीट क्रॉप लगाता है, ठीक है। तो वीट क्रॉप जब ग्रो हो जाती है तब वो उसको काट लेता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी वो उसमें वीट क्रॉप ही ग्रो करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सपोज वीट क्रॉप को एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है। तो सपोज वीट क्रॉप को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो वीट क्रॉप जब फील्ड पर लगाई गई तो जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, वीट के जो प्लांट्स हैं वो उसको ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो सॉइल के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स जो उनकी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। फिर क्या होता है, वो वीट की क्रॉप जो है वो काटी गई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा से उस फील्ड के अंदर वीट की क्रॉप लगा दी गई। उसकी वजह से क्या होगा, पहले ही उस फील्ड के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट कम है, फिर से अब वीट को क्या है, वही सेम न्यूट्रिएंट चाहिए नाइट्रोजन, अब उसको या तो वो कम पड़ जाएगा, ठीक है, और या फिर मिलेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, है ना। तो हम इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दो क्रॉप्स को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सपोज पहले हमने एक क्रॉप लगा दी, वीट की ही अगर हम बात करें, हमने वीट क्रॉप ग्रो की, वीट क्रॉप ने नाइट्रोजन कंटेंट को ले लिया, सॉइल के के अंदर जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी क्रॉप वहाँ पे ग्रो करेंगे जिससे नाइट्रोजन की अमाउंट सॉइल के अंदर बढ़ जाए, ठीक है। जैसे हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं हमारी, पल्सीज होती हैं, बीन्स, पीज़, मटर वगैरह जो होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, इनकी जो क्रॉप्स होती हैं, इनकी क्रॉप्स जब हम लगाते हैं, इनकी क्रॉप्स क्या करती हैं, नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर रीस्टोर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर हम वीट क्रॉप के बाद एक लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो कर देंगे तो जो नाइट्रोजन वीट क्रॉप के टाइम पे यूटिलाइज हो गया था वो लेग्यूमिनस क्रॉप के टाइम पे क्या है, दोबारा से सॉइल में रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पल्सेस जो भी हमने लेग्यूमिनस क्रॉप लगाई है उसके बाद दोबारा से हम वीट क्रॉप लगाएंगे, तो जो नाइट्रोजन दोबारा से सॉइल में रिस्टोर हो गया वो दोबारा से वो वीट क्रॉप ले सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो तरह की क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको अल्टरनेट बेसिस पे पहले एक क्रॉप लगाएंगे फिर दूसरी क्रॉप लगाएंगे, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ओके, क्रॉप रोटेशन कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अल्टरनेट बेसिस पर दो क्रॉप्स या दो से ज़्यादा भी क्रॉप्स हो सकती हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम पे जो फार्मर्स थे, नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, लेग्यूम्स ग्रो करते थे, जैसे मैंने आपको लेग्यूम्स का एग्जांपल दिया है, ठीक है। लेग्यूम्स ग्रो करते थे एक सीज़न के अंदर और फिर नेक्स्ट सीज़न में वो वीट की क्रॉप ग्रो करते थे। सेम एग्जांपल आई गिवन टू यू। दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। और लेग्यूम्स क्रॉप ग्रो करने की वजह से क्या होता था, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती थी और वीट क्रॉप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते थे, ठीक है। इस तरह से क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस काम करती है और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम अच्छी यील्ड चाहते हैं क्रॉप की, तो ठीक है। आगे देखते हैं हम। अभी हमने हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र स्टेप इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। जो हमारा फोर्थ स्टेप है, आफ्टर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स व्हाट वी विल डू इन द फील्ड। एग्रीकल्चर के अंदर जब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम क्रॉप्स के साथ क्या करते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेप इज़
इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है हम अभी देखेंगे। देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जैसे आप अपने पौधों में पानी देते हो, वैसे ही फार्मर जो होता है वो क्रॉप्स में पानी डालता है एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे जैसे पानी की ज़रूरत होती है क्रॉप्स को। ठीक है, तो वाटरिंग द क्रॉप्स या सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब कि पानी की सप्लाई करना, लेकिन पानी आता कहाँ से है वो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सो पानी कहाँ से लेते हैं फार्मर्स, वो वेल्स से ले सकते हैं, जो कुएँ होते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल्स लगे होते हैं कुछ फार्म्स में, आप देखोगे पॉन्ड्स जो होते हैं, तालाब होते हैं, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, तो ये सब दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। हर जगह पर अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि वो क्रॉप्स को पानी अवेलेबल करा सकें, पानी की सप्लाई दे सकें। ठीक है, अब हमने देखा इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन में हम क्या करते हैं, वी सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स। बट वाई वी सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स, वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पानी का क्या रोल होता है एक क्रॉप को ग्रो करने में, वो हम देखेंगे अभी। लेट्स सी वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी क्यों ज़रूरी है क्रॉप के लिए। ठीक है, सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स। ठीक है, वाटर कहाँ जाता है, प्लांट रूट्स जो हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सॉयल के अंदर जो मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के थ्रू, अगर पानी नहीं होता। ठीक है, पानी क्या है, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम हेयर। प्लांट को पानी भी चाहिए, लेकिन जो जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी पानी के थ्रू ही रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। आपको पता है सीड्स को जब हम सो करते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट मतलब वो बर्स्ट होते हैं, उनके अंदर से एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो जो जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं होती है। जो सीड होता है उसको ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए अपने चारों तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रो करेगा। अगर ड्राई कंडीशंस होंगी तो वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं और उस वाटर के थ्रू ही सब न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वाटर के थ्रू ही पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में वो सब न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। सो विदाउट वाटर दीज न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट रीच द पार्ट्स ऑफ द plants. Next is to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. ठीक है, अगर हम चाहते हैं सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे, पानी का जो कंटेंट है वो बना रहे, पानी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड अ गुड क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, तो इसीलिए फील्ड्स को रेगुलर इंटरवल्स पर हमें पानी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट हैज़ बिकम क्लियर टू यू। आगे देखते हैं हम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इरिगेशन। सो यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं इरिगेशन के। मीन्स जो पानी की सप्लाई होती है वो हम किस तरह से करते हैं। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मीन्स जो पुराने मेथड्स हैं, जो आज भी कुछ गाँव में, विलेजेस में यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं मतलब पहले ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, क्योंकि आजकल क्या मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो हम बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस स्लाइड में आपको कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की पिक्चर्स दी गई है। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स जो पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे, वो इसमें दिए गए हैं। लेट्स डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ मोट।
MOAT। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो की गई है, उसमें इसमें क्या होता है, वेल से पानी निकाला जाता है। इसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। वेल्स के अंदर से क्या होता है, वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द वेल्स विद द हेल्प ऑफ अ पुली। आपको ये बीच में दिख रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड अ पुली। तो पानी को इस पुली के थ्रू वेल से निकाला जाता है, ठीक है, और फिर फील्ड्स में पानी को डाला जाता है। देखो, इस पुली के थ्रू वेल से पानी निकाला बकेट अटैच करके, और फिर ये फार्मर क्या है, वो बकेट में पानी भर गया। उसके बाद वो फार्मर क्या कर रहा है, फील्ड्स में पानी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेहेड सिस्टम। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। रेहेड में क्या होता है, दिस इज़ सेम एज मोट, लेकिन रेहेड के अंदर डिफरेंस क्या है, जो पानी है वेल से पानी को कौन निकालता है, एनिमल्स निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी एक पुली इन्वॉल्व, पुली लगा हुआ होता है। तो पुली की हेल्प से क्या होता है, एनिमल्स को ऐसे बांध दिया जाता है। देखो इसमें क्या एनिमल को बांधा हुआ है ना, ठीक है। तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, ऐसे जैसे वो घूमते हैं, ऐसा गोल सर्कुलर ऐसा रूट पे वो घूमेंगे, और वो पुली जो है वैसा ऊपर आती जाएगी रस्सी, और जो बकेट है, बकेट जो पानी से भर जाती है वो भी ऊपर आती रहती है, ठीक है। और फिर उस पानी को फील्ड्स में दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ चेन पंप सिस्टम। चेन पंप सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर 2 व्हील्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक व्हील दिख रहा होगा और एक व्हील नीचे होता है, ठीक है। 2 व्हील्स लगाए जाते हैं, और एक बकेट, जो बकेट होती है वो व्हील के ऊपर बांध दी जाती है। तो जैसे ही ये बकेट और दोनों व्हील्स के बीच में, जैसे यहाँ पे 2 व्हील्स लगाए हैं, दोनों व्हील्स के बीच में ऐसे चेन लगाई जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर बकेट को बांधा है, ठीक है, तो ये जैसे ही चेन मूव करेगी तो ये बकेट जो है ये नीचे जाती रहेगी, और ये जाएगी यहाँ पे पानी के अंदर। और जैसे ये पानी में से पास होगी तो ये बकेट पानी से भर जाएगी और ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी तो इस व्हील के अराउंड घूमेगी, तो इस तरह से वो बकेट यहाँ पे आके उल्टी हो जाएगी इस तरह से, और वो जो पानी है वो फील्ड में नीचे चला जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज़ डेकली। अब डेकली में क्या होता है देखेंगे, इट इज़ अ मैनुअल मेथड, मतलब सभी मैनुअल मेथड्स हैं वैसे चेन पंप को छोड़ के। तो मैनुअल मेथड है, इसके अंदर बहुत सिंपल मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन टेक आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट एंड पॉर इट इनटू द फील्ड्स, ठीक है। एक पर्सन है जो बकेट से पानी निकालता है, और उसको डायरेक्टली, जैसे अब देखो यहाँ पे आपको एक पर्सन दिख रहा है, उसके हाथ में एक बकेट दिख रही है, ठीक है। उसने वेल से पानी निकाला, बकेट में लिया, ज़रूरी नहीं है वेल इन्वॉल्व हो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे पुली का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वो बकेट लेगा और ऐसे पानी को उसमें फील्ड में सीधा डायरेक्टली डाल देगा। देखो इस मेथड में क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए ये मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक्चुअली इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस, सो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं सब में पानी वेस्ट होता है, इसीलिए आजकल इन मेथड का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है ताकि पानी की वेस्टेज ना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन? देयर आर 2 मॉडर्न मेथड्स वी विल डिस्कस हियर, एंड दीज आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, दिस इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, एंड नेक्स्ट इज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो हम इनको दोनों को समझते हैं क्या होता है। देखो, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड आप समझते हो, जहाँ पे एक प्लेन लैंड नहीं होती है, ठीक है, अनइवन है लैंड, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है। तो ऐसी जगह पर जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जहाँ पे पानी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है, मतलब पानी की जो अमाउंट है वो कम है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ये परपेंडिकुलर समझते हो ना आप, 90 डिग्री, ठीक है। ये 1 सेकेंड, या तो इस तरह से पाइप लगाई जाती हैं। ये एक मेन पाइप है, इसके साथ बहुत सारी पाइप्स कनेक्ट की गई हैं। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये सब पाइप्स कनेक्ट की गई हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई जाती हैं, इनके ऊपर रोटेटिंग नोज़ल होते हैं। रोटेटिंग नोज़ल मतलब हम उसको ऐसे घुमा के ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये नोज़ल उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, और ये सब जो पाइप लाइन्स हैं, छोटी छोटी पाइप्स हैं, ये सब एक मेन पाइप से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। मेन पाइप से सब कनेक्ट होती हैं, और ये जो पाइप्स हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर इस तरह से लगाई जाती हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर लगाई जाती हैं, ठीक है।
then when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, ठीक है, जब पानी को पंप के थ्रू मेन पाइप में से फ्लो किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी को एकदम से फ्लो करवाया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो रोटेटिंग नोज़ल जो है उसके अंदर से निकलता है जब हम उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, और वो सारे ये जितने भी आपको नोज़ल्स दिख रहे हैं इधर, ठीक है, ये सब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए हैं, इन सब में से ऐसा स्प्रिंकल के जैसा निकलता है, स्प्रिंकल जैसे फुवारा होता है ना, ठीक है, फाउंटेन जैसे, ठीक है, इस तरह से उनमें से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, ठीक है, तो वो क्रॉप्स पर इस तरह से स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है क्योंकि वो स्प्रिंकल फॉर्म में पूरे फील्ड में फैलता है, ठीक है, तो स्प्रिंकल्स के थ्रू जैसे बारिश होती है ना, उस तरह से पानी फैल रहा है, तो एक जगह पे बहुत सारा पानी, जैसे अगर हम बाल्टी से डालेंगे तो एक ही जगह पे बहुत सारा पानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में अलग इंटरवल्स पे स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं जिनमें से पानी फाउंटेन के जैसे बाहर आता है और वो इवनली पूरे फील्ड में फैलता है, ठीक है। इस तरह से हम पूरे फील्ड को इजीली बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी एनिमल का इस्तेमाल किए हुए, कोई मैन पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। स्विच ऑन किया, स्प्रिंकल्स ऑन हो जाएंगे और जो पानी है वो पूरे फील्ड में इवनली फैल जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अवर नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। सो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, देखो ड्रिप का मतलब क्या होता है, ड्रिप का मतलब होता है एक ड्रॉप समझते हो, एक बूंद, ठीक है। तो जो पानी होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके सीधा रूट्स तक पहुंचता है, ठीक है। प्लांट्स को पानी कहाँ चाहिए, रूट्स के पास ही चाहिए ना। तो ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जो पानी है पानी को रूट्स के पास ही अवेलेबल कराते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ ऐसा बकेट से नहीं डाल रहे हैं कि बहुत सारा पानी हमने डाल दिया उसके अंदर और क्या है बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालते हैं जिससे बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है, स्पेशली इन गार्डन्स या फिर ट्रीज़ या वाटर जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होता। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, ओके। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर, ठीक है। जहाँ पे जिन रीजन्स में पानी बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कमी होती है पानी की, वहाँ पे हम इस मेथड को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे क्रॉप की यील्ड भी बहुत अच्छी होगी और पानी भी बहुत कम लगेगा। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया है, यहाँ पे एक मेन पाइप है और ये जो पाइप है इसके ये यहाँ पे भी एक पाइप है और हर रूट्स के साथ इसको प्लांट्स की रूट्स कनेक्ट किया गया है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सब प्लांट्स की रूट्स के पास जो है वो पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। सो दीज आर द टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इन दोनों मेथड्स का फ़ायदा क्या है, फर्स्ट इज़ वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, पानी वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ नो ह्यूमन नीडेड, नो एनिमल नीडेड, ठीक है, कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे बकेट से पानी डाले या फिर कैसे भी कुएं से पानी निकाले, नथिंग इज़ नीडेड, ठीक है। जस्ट हम ऑन करेंगे पंप को और पानी अपने आप फील्ड्स में चला जाएगा, तो लेबर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ द मॉडर्न मेथड। आगे हम पढ़ते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। इसके बाद का जो टॉपिक है जो नेक्स्ट हमारा रहेगा दैट विल बी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। पानी तो हमने डाल दिया खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर हमने इरिगेट कर दिए फील्ड्स, उसके बाद जो हमारा
प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से हम कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब हम क्रॉप्स को जो काटते हैं, ठीक है। फसल जब वो पूरी ग्रो हो जाती है देन तो हम उसको क्या कर लेते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है क्रॉप को, उसको काट लेते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ क्रॉप, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग के बाद, वो होता है स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग के बाद हम स्टोरेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो ग्रेन्स होते हैं, जो फसल है, उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी इन योर थर्ड पार्ट एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है, व्हाट वी हैव लर्नड। सो व्हाट आर द मेन वर्ड्स वी हैव लर्न टुडे। फर्स्ट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज अ क्रॉप? When a plant is grown in a field on a large scale, it is called crop. Next is fertilizer, chemicals that are used to restore the fertility of the soil. Manure. Manure is the organic substance made from dead plants and animals, and that also helps the soil to restore its nutrients. Next is irrigation. Supplying of water to the fields is called irrigation. स्प्रिंकलर सिस्टम हमने पढ़ा, फाउंटेन वाला जो था, दैट इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। एंड देन लास्ट वाज द ड्रिप इरिगेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सो दीज वर द मेन वर्ड्स वी हैव लर्नड टुडे। नाउ विल सी वन क्वेश्चन दैट इज़ दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रही हूँ मैं और कॉलम बी में भी दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। आपको खुद से करना है। सो यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देन कॉलम बी में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले करके देखेंगे, फिर आगे वीडियो सुनेंगे, ठीक है। तो कॉलम ए में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज़ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आपको कॉलम बी में ढूंढना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ओके। एंड वी नो दैट पैडी आर मेज आर ग्रोन इन रेनी सीजन, so we will match kharif crops with paddy and maize. Next is rabi crops. Rabi crops are those which are grown in winter season, and we know wheat, gram and pea are grown in winter season, so we will match rabi crops with D, wheat, gram and pea. Next is chemical fertilizers. Chemical fertilizers कौन कौन से हैं? These are urea and super phosphate. ओके, नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर की अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज़ द आंसर, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर एंड wait, yeah, and I will bring to you the next part very soon, maybe tomorrow, okay। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।